Hello everyone, I am Minal Moon, lecturer in Information Technology from Government Polytechnic, Brahmapuri. In previous video, we have seen fundamentals of computer networks or introduction to computer networks. Means what is computer networks, what are the various uses, advantages, disadvantages, application, and benefits of computer network. Now, in this video, we will see classification of computer network. So, the CO covered in these lectures are is use basic concept of networking for setting up computer networks. Okay, so there are three classification of computer networks. So first classification is on the basis of geographical classification, means geographical area covered by your computer network. So geographical classification divides computer networks in 5 types. First one is the PAN, personal area network. Then second one is the CAN, campus area network. Third one is the LAN, local area network. Fourth one is the MAN, metropolitan area network, and last one is the WAN, wide area network. Okay, then second classification is on the basis of transmission technology, how to transmit data from one computer to another computer. So the second classification divides computer network in 2 types. First one is the broadcast computer network, and second one is the point to point computer network. And third classification is on the basis of network relationship, means what are the network component or what are the use of network devices in the computer network. So on the basis of that, there are 2 types. First one is the peer-to-peer computer network, and second one is the client server computer network. We will see all of these classification one by one, that is geographical classification, transmission technology, and network relationship in details in now slide. Okay, so first we will see geographical classification. So geographical classification is based on the physical size of the network or the area covered by the network. जो एरिया कवर्ड होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो कितना किलोमीटर का है या कितना एरिया वो कवर्ड करता है, कितने एरिया में वो कवर्ड है, यानी कि इस एरिया में आप अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं या रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, उस एरिया पे डिपेंड है आपका ये क्लासिफिकेशन. उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट वन इज द PAN, second one is the CAN, then LAN, MAN, and WAN. So first we will see PAN. So PAN is a personal area network, is used for communication among computer devices close to one's person. Okay, wireless networking or Bluetooth technology are the some example of PAN. Okay, ये PAN का डायग्राम है. यहाँ पे देखिए, ये जो 2 कंप्यूटर्स है, ये 2 कंप्यूटर्स वायर्ड के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम वायर्ड PAN बोलेंगे, मीन्स वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. और ये जो 2 कंप्यूटर या मोबाइल है, ये कनेक्टेड है एक में के साथ वायरलेसली, तो इसको हम वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे. जैसे अगर आपको मोबाइल टू मोबाइल डेटा सेंड करना है, तो आप क्या करते हैं, एक तो हॉटस्पॉट देके डेटा सेंड करते हैं, या ब्लूटूथ के यूज से आप डेटा सेंड कर सकते हैं. तो वो क्या हो गया, उसका जो एरिया होता है बहुत कम होता है, मीन्स ब्लूटूथ का जो एरिया कवर होता है वो लेस देन 10 मीटर्स होता है. या यूएसबी के साथ अगर आप डेटा यूएसबी के साथ कनेक्ट करते, अगर आप डेटा शेयर करते हैं, तो यूएसबी भी जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है, यानी आप थोड़े एरिया को ही कवर करके इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं, तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे. ठीक है. सो वायरलेस नेटवर्किंग और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आर द सम एग्जांपल ऑफ PAN. द कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर डिवाइसेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज द PAN. जो पर्सनल यूज के लिए, अगर हमको खुद की फाइल सेंड करनी है या कुछ डेटा उसका एक्सेस करना है, तो उसके लिए जो नेटवर्क सेट किया जाता है उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे. PAN जनरली कवर्स अ रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स. ओके,
जो ब्लूटूथ का यूज करके ये पैन जो नेटवर्क है वो स्टेब्लिश किया जाता है। तो ब्लूटूथ कवर करता है 10 मीटर्स का एरिया। सो प्लान जनरली कवर्स अ रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स area. Okay, so there are two types, wireless personal area networks and second is wired personal area network. जो वायरलेस से कनेक्टेड होता है उसको हम वायरलेस बोलेंगे, जो वायर्ड से कनेक्टेड होता है यूएसबी से कनेक्टेड होता है उसका हम वायर्ड बोलेंगे। सो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इज डेवलप्ड बाय सिंपली यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई, ब्लूटूथ। इट इज अ लो रेंज नेटवर्क। उसकी जो रेंज होती है बहुत लो होती है, बहुत कम एरिया जो है वो कवर करता है। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द यूएसबी। ओके, एग्जांपल फोन का ही ले लो। अगर आप फोन में से किसी इमेज को दूसरे फोन में या कंप्यूटर में सेंड करना है तो आप ब्लूटूथ के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, यानी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और उसको आप इमेज जो है उसमें सेंड कर सकते हैं। अगर दूसरा वे है यूएसबी से आप कंप्यूटर को उसके साथ कनेक्ट कर दो, फिर उसकी जो मेमोरी है वो कंप्यूटर में एक्सेस हो जाती है और उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो हो गए पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर है एडवांटेजेस ऑफ पैन। इजी नेटवर्क मेंटेनेंस। नेटवर्क मेंटेनेंस जो है वो इजी होता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो कम होते हैं। अगर मोबाइल से कंप्यूटर में कुछ डेटा सेंड करना है तो दो ही डिवाइसेस कनेक्टेड है या दो ही डिवाइसेस इंक्लूड है इन पैन नेटवर्क, और फिर उसका मेंटेनेंस जो है इजी हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम ऑकर हो जाती है तो उसको सॉल्व करना भी इजी हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स ऑन नेटवर्क विल बी मोर इजीली हैंडल्स। ओके, देन डिसएडवांटेज है लिमिटेड ट्रांसमिशन रेंज। जो ट्रांसमिशन की रेंज है या एरिया कवर्ड है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है। देन सेकंड डिसएडवांटेज है नेटवर्क कवर्स ओनली फ्यू डिवाइसेस। नंबर ऑफ डिवाइसेस जो इंक्लूड होते हैं नेटवर्किंग में वो 2 या 3 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। एंड नॉट सिक्योर। जो सिक्योरिटी है उसमें प्रोवाइड नहीं है। अगर आप मोबाइल यूएसबी के साथ कंप्यूटर पे कनेक्टेड है तो मोबाइल का ऑल द डेटा उसको एक्सेस हो जाता है, कुछ प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहती है, या डेटा जो है वो सिक्योर नहीं होता है। अगर कंप्यूटर में कुछ वायरस होगा तो वो आपके मोबाइल में भी वो वायरस आ जाता है या आपके फाइल को करप्ट कर सकता है। तो सिक्योरिटी जो है उसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये एडवांटेजेस है, यानी इजी नेटवर्क मेंटेनेंस एंड प्रॉब्लम अगर ऑकर होता है तो उसको हैंडल करना इजी हो जाता है। डिसएडवांटेज है जो ट्रांसमिशन रेंज है या एरिया कवर है बहुत कम है, जो डिवाइसेस है वो बहुत कम इंक्लूड होते हैं, और जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये हो गए हैं एडवांटेजेस ऑफ पैन एंड डिसएडवांटेज। देन सेकंड नेटवर्क क्लासिफिकेशन में सेकंड नेटवर्क है कैन। फर्स्ट हो गया पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड है कैंपस एरिया नेटवर्क। अभी इसके नाम में ही कैंपस है, मींस कैंपस यानी एखादे कॉलेज का कैंपस कवर करता होगा, या एखादे आईटी कंपनीज का कैंपस कवर करता होगा, या एखादी प्राइवेट कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी पूरी जो कैंपस है एखादे कंपनी का हो सकता है या स्कूल का हो सकता है या कॉलेज का हो सकता है, वो पूरा वो कवर्ड करता है, तो उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है। सो CAN is a campus area network is used in connects building across the campus of college or universities. Okay, a CAN is actually a type of LAN. It is larger than a LAN but smaller than a MAN. Okay, और ये क्या होता है? नेक्स्ट जो टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क का वो लैन है, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। वहाँ पे क्या होता है, अगर एक आधे लैब में 10 कंप्यूटर है तो एक में के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैन। ठीक है, फिर वो लैब यहाँ पे लैन हो गया। फिर हॉस्टल में 10 कंप्यूटर है तो वो भी लैन में कनेक्टेड है, कॉलेज में 10 कंप्यूटर है तो वो भी लैन में कनेक्टेड है। तो ये जो लैन है एक में के साथ कनेक्टेड है, बट ये एक ही कैंपस में है, इसलिए वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। मीन्स वो क्या होता है, कैन जो है वो लैन से बड़ा होता है बट मैन से छोटा होता है। ठीक है। देन कैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स 2 or more LANs but that is limited to a specific and contiguous geographical area such as college campus, industrial campus, complex और military base. Okay, इसमें क्या होता है, 2 or more LAN कनेक्टेड होते हैं एक के साथ, और जो एरिया कवर्ड करता है वो कॉलेज कैंपस हो सकता है या स्कूल कैंपस हो सकता है, या एक आधी इंडस्ट्री हो सकती है, एक आधा मिलिट्री बेस हो सकता है। ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अगर डिफरेंट बिल्डिंग्स होंगे तो उसको एक में के साथ कनेक्ट कर सकता है, जिन्हें की
वो ऑल द बिल्डिंग्स या ऑल द यूजर्स है वो शेयर करेंगे सेम स्पीड ऑफ डेटा। ओके, देन कैन के एडवांटेजेस है, कैन इज इकोनॉमिकल, जो इफिशिएंटली या चीपर पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क। देन कैन इज अ सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। Then helpful for universities and corporate organization to work from any block and receive the same speed of data together. Okay, अगर CAN में all the buildings connected है एक आधे ऑर्गेनाइजेशन की, तो अगर यूजर वो एक बिल्डिंग में होगा या दूसरे बिल्डिंग में होगा वो सेम स्पीड के साथ अपना काम कर सकता है, क्योंकि CAN में सेम स्पीड प्रोवाइड करता है वो ऑल द कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड इन द CAN. Okay, then है LAN. LAN is a local area network. LAN is privately owned network covering a small geographic area less than 1 kilometer, like a home, office, building or a group of building. ठीक है, जैसे MAN है, वहाँ MAN पे क्या होता है, सॉरी, फर्स्ट है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वहाँ पे क्या होता है 2 या 3 ही डिवाइसेस से वो एक के साथ कनेक्टेड होंगी, उसकी रेंज जो है वो बहुत कम होगी, 10 मीटर के आसपास। ठीक है, बट कैन क्या है, कैन इज 2 या 3 बिल्डिंग्स को कनेक्टेड कर सकता है। ठीक है, और लैन क्या है, सिर्फ सिंगल बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उसको वो कनेक्ट करता है, सिंगल बिल्डिंग। कैन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 बिल्डिंग्स। लैन में क्या है, सिंगल बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग होम भी हो सकती है, एक आधी ऑफिस भी हो सकती है, या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लैन यानी एक आधा लैब है, तो ये कंप्यूटर एक के साथ कनेक्टेड है, उसको हम लैन बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन ट्रांसमिट डेटा विद स्पीड ऑफ सेवरल मेगाबाइट्स पर सेकंड, 10 to 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। देन एडवांटेजेस ऑफ लैन, द रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क इज हाई because the failure of the computer in the network does not affect the function of for other computers. Okay, reliability high है, अगर 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है लैन में, अगर एक आधा कंप्यूटर खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, तो दूसरे कंप्यूटर को वो अफेक्ट नहीं करता है, दूसरे कंप्यूटर का जो काम है या वर्क है या फंक्शन है वो जैसे कि तैसे शुरू रहता है। ठीक है, सो रिलायबिलिटी हाई प्रोवाइड करता है। देन एडिशन ऑफ न्यू नेटवर्क, न्यू कंप्यूटर टू नेटवर्क इज इजी। अभी ये लैन है, इसमें अगर एक आधा न्यू कंप्यूटर हमको ऐड करना है तो हम इजीली एक वायर अटैच करके यहाँ पे न्यू कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। सो एडिशन ऑफ न्यू कंप्यूटर टू नेटवर्क इज इजी। हाई रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या यूजर्स है वो कम होते हैं, 10 to 12 या 100 तक होते हैं, तो हाई रेट ऑफ डेटा होता है ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू मैन और वैन। इस लैन से बड़े जो नेटवर्क है मैन या वैन, उससे ज्यादा स्पीड वो प्रोवाइड करता है, और लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉलेशन भी है उसका, वो लेस एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू मैन एंड वैन। डिसएडवांटेज है, कवर लिमिटेड एरिया, जो एरिया कवर होता है वो 1 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, सो कवर लिमिटेड एरिया। देन इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड टेक्नीशियन, अगर आपको लैन नेटवर्क क्रिएट करना है या इंस्टॉल करना है तो आपको टेक्नीशियन की जरूरत है, आप जो कंप्यूटर से वो लैन में कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी किसी नॉर्मल इंसान लैन में कनेक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क की स्टडी कर रहे हैं या जिसको कंप्यूटर नेटवर्क जानता है वही इंसान या पीपल है वो जो नेटवर्क है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देन प्राइवेसी वायोलेशन, प्राइवेसी वायोलेशन में क्या होता है, लैन एडमिनिस्ट्रेटर होता है या टेक्नीशियन होता है, हैज द राइट टू चेक पर्सनल डेटा, फाइल्स, इंटरनेट हिस्ट्री एंड कंप्यूटर यूज हिस्ट्री ऑफ द लैन यूजर्स। लैन के अगर एक लैन नेटवर्क तो उसमें एक लैन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो लैन एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स होते हैं कि वो किसी भी यूजर का डेटा एक्सेस कर सकता है, उसकी हिस्ट्री देख सकता है, या कंप्यूटर में जो भी फाइल्स है उसको वो एक्सेस कर सकता है, तो जो प्राइवेसी है वो वायलेट होती है लैन यूजर की, तो ये डिसएडवांटेज है। सो कवर्स लिमिटेड एरिया, इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्स टेक्नीशियन, एंड थर्ड डिसएडवांटेज है प्राइवेसी वायोलेशंस ऑफ द यूजर्स। ये हो गया लैन। देन है मैन, मैन इज अ मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, लैन से बड़ा होता है
कैंपस एरिया नेटवर्क से भी बड़ा होता है बट वैन से छोटा होता है। ये क्या करता है, मेट्रोपोलियन, मेट्रोपोलियन मीन्स मेट्रो सिटी, एखादी सिटी को वो कवर करता है। और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज अ सिटी दैट कवर्स अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्जर एरिया नेटवर्क। ओके, जो जैसे कैंपस क्या होता है, 2 या 3 बिल्डिंग्स को सिर्फ कनेक्ट करता है, यानी लैंड का ही कनेक्शन होता है बट 2 या 3 बिल्डिंग्स को ही कनेक्ट करता है। बट मैन क्या करता है, मोर देन 100 बिल्डिंग्स को वो कवर करता है, मोर देन 100 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स होगा उसको कनेक्ट करता है, तो उसको हम मैन बोलेंगे, यानी पूरे सिटी को जो कवर करता है उसको हम मैन बोलेंगे। मैन इज टिपिकली कवर्स एन एरिया अप टू 10 किलोमीटर्स। ओके, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैन इज द केबल टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल इन मेनी सिटीज। ओके, for an organization, the common use of MAN is to extend their LAN connectivity between buildings and offices that are within the same city or urban areas. Hence, the name Metropolitan Area Network. Communication medium used for MAN are optical fibers and cables etc. Optical fiber भी यूज हो सकते हैं या अदर केबल, कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज हो सकते हैं। तो वो ट्रांसमिशन मीडिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसमें वो कवर्ड होंगे। तो ये मैन है। So government agency uses MAN to connect to the citizens and private industry. In MAN, various LANs are connected to each other through a telephone exchange line. Has higher range than local area network. Okay, local area network से वो ज्यादा एरिया कवर करता है बट इसकी जो स्पीड होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क से कम होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूजर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मैन है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये एक लैन हो गया, ये एक लैन हो गया, एक लैन हो गया, एक लैन हो गया, मल्टीपल लैंड्स को वो इंटरकनेक्ट करता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ओके, the advantages of man span large geographical area than lands. Okay, it covers more area than lands. Then man falls in between land and land, therefore increase the efficiency at handling data. Okay, disadvantage है, more cable required. Okay, obviously the number of computers involved in man are more than land, so it requires more cables. The installation cost very much, more numbers of cable required, installation cost is higher than the LANs. The network installation is difficult and requires skilled person. Yes, if you want to create one MAN network, then you will require a network technicians for creation of that MAN network. Then है WAN, लास्ट वन इज जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट का क्लासिफिकेशन है WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। WAN इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। WAN is a long distance communication network that covers a wide geographical area such as state और country। ठीक है, PAN जो है वो पर्सनल था, एक या दो इंसान को कनेक्ट करता था, एक या दो इंसान की डिवाइस को कनेक्ट करता था। देन कैंपस जो था वो 2 या 3 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता था। लैंड जो है वो सिंगल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता था। मैन जो है वो मोर देन 100 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता था। और लास्ट वन इज द वैन, जो ऑल ओवर वर्ल्ड या सिटी स्टेट या कंट्री को कनेक्ट करता है, उसको हम वैन बोलेंगे। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज इंटरनेट। A WAN provides long distance transmission of data, voice, image and video information over larger geographical areas that many compromise a country or even whole world. Okay, WAN जो भी डेटा होगा, यानी वो वॉइस डेटा हो सकता है, इमेज डेटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन डेटा हो सकता है, वो लार्जर एरिया के लिए ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। एंड इसमें लैन भी है, ये मैन भी है, लैन भी है, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी है। तो ये ऑल अदर नेटवर्क को एक के साथ कनेक्ट कर सकता है और उसका बनता है हमारा WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। The advantages of WAN है, WAN can connect to computer to wider area geographical, जो उसका जो एरिया कवरेज है वो बहुत ज्यादा है as compared to other network. And WAN shares software and resources with a connecting workstation. Okay, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे या अदर रिसोर्सेस होंगे उसको शेयर करता है। Then disadvantage है, WAN are expensive and generally slow. Okay, नंबर ऑफ यूजर जो है वहाँ पे WAN में बढ़ जाते हैं, यानी एक आधी कंट्री को कवर करता है या स्टेट को कवर करता है,
तो ऑब्वियसली उसके जो यूजर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो उसका जो कॉस्ट होगा इंस्टॉलेशन का वो ज़्यादा होगा, एंड नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा है मीन उसकी जो स्पीड है वो कम होगी एज कम्पेयर टू लैन और मैन. The network installation is difficult and requires skilled person. Obviously, it required a skilled person to install that particular network, and data is not secure. Needs protection against hackers and virus. आपका जो data है वो secure नहीं है on WAN और इंटरनेट. अगर आपको डेटा सिक्योर करना है तो प्रोटेक्शन पॉलिसीज आपको यूज करनी होंगी अगेंस्ट हैकर एंड वायरसेस. अगर एंटीवायरस यूज करना होगा या फायरवॉल यूज करनी होगी, तो अलग अलग वे है आपके डेटा को सिक्योर करने के. तो ये हो गए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ WAN network. Okay, so on the basis of geographical area or geographical coverage classification, there are 5 types of computer networks. First one is the PAN, that is personal area network. Second one is the CAN, campus area network. Third one is the LAN, local area network. Fourth one is the MAN, metropolitan area network. And fifth one is the WAN, wide area network. ठीक है, तो पैन जो होता है वो पर्सनल ब्लूटूथ का यूज करके जो भी डेटा हम सेंड करते हैं उसमें उसको हम पैन बोलेंगे, दैट इज पर्सनल यूज के लिए यूज होता है. देन कैंपस 2 या 3 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है, उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे. यानी एखादे कॉलेज के कैंपस को कवर करता है या एखादे इंडस्ट्री के कैंपस को कवर करता है तो उसको हम कैंपस बोलेंगे. बट कैंपस एरिया नेटवर्क जो है वो लैन से बड़ा होता है और मैन से छोटा होता है. ठीक है, फिर लैन जो है एखादी बिल्डिंग को या स्कूल में जो यूज होता है या एखादी लैब में जो यूज होता है उसको हम लैन बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क. देन है मैन, दैट इज एखादी सिटी को जो कवर करता है उसको हम मैन बोलेंगे, दैट इज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. एंड एखादे स्टेट को या कंट्री को जो कवर करता है उसको हम मैन बोलेंगे, वाइड एरिया network. Okay, this is the classification on the basis of geographical area covered by computer network. Okay, so these are the comparison between LAN, MAN and WAN, that is local area network, metropolitan network and wide area network. We will see one by one. A LAN is a computer network that interconnect computers within a limited area such as residence, office, building, school और laboratory. Okay, ये जो कवर करता है एखादी बिल्डिंग होंगी, स्कूल होंगे, लेबोरेटरी होंगे, मैन होंगी, वो LAN से बड़ा होता है बट WAN से छोटा होता है और एखादी सिटी को वो कवर करता है. कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट यूजर resources in geographically larger than LAN but smaller than WAN. Obviously LAN से बड़ा होगा, WAN से छोटा होगा. और ये कंप्यूटर नेटवर्क large area network that is bigger than LAN and MAN. Then LAN stand for local area network, MAN stand for metropolitan area network, WAN stand for wide area network. Then third है covers an area within 1 kilometer to 10 kilometer. Yes, LAN covers area में 1 to 10 kilometers, then 100 kilometers and beyond 100 kilometers. Okay, then easier to design and maintain. नंबर ऑफ जो नेटवर्क डिवाइसेस या कंप्यूटर होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए वो इजियर टू डिजाइन एंड मेंटेन होते हैं. नंबर ऑफ डिवाइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लैन, सो डिफिकल्ट टू एंड कॉम्प्लिकेट टू डिजाइन एंड मेंटेन. एंड ये तो और ज़्यादा होते हैं तो इसलिए डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू डिजाइन एंड मेंटेनेंस. देन हाई डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड, नंबर ऑफ जो यूजर होते हैं वो कम होते हैं इसलिए हाई डेटा स्पीड प्रोवाइड करता है, मॉडरेट डेटा स्पीड प्रोवाइड करता है और यहाँ पे स्लो डेटा स्पीड प्रोवाइड करता है. देन लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर है इसलिए लेस कंजेशन होगा, यहाँ पे मॉडरेट कंजेशन होगा, नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है इसलिए लो कंजेशन होगा. ट्रैफिक जो बोलते हैं हम डेटा ट्रैफिक वो ज्यादा होगा. एंड देन नेटवर्क एग्जाम्पल है नेटवर्क इन होम या लैब या स्कूल या ऑफिस में जो नेटवर्क यूज होता है उसको हम लैन बोलेंगे. नेटवर्क इन सिटी और स्मॉल टाउन में होता है उसको हम मैन बोलेंगे. और नेटवर्क इन कंट्री और स्टेट होता है उसको हम WAN बोलेंगे. तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ LAN, MAN एंड WAN. ओके, सो in next video we will see the classification of network on the basis of transmission technology. Thank you.